Students, in this video we will discuss the remaining part of tenses. So come to page number 49 of your grammar book. So let us start. Simple past. We will proceed with the simple past tense first. Meaning the action happened in the past. As you all know about the past tense means वो समय जो बीत चुका है, तो वो काम जो बीते हुए समय में हुआ, पास्ट में हुआ, that is the simple past tense. Then next we have past continuous, that is another form of past tense. The action was going on when another past action happened or at some point of time in the past. मतलब वो काम the action which was going on in the past, लेकिन वो कब, when another past action happened, जब past में कोई दूसरा काम किया जा रहा है, and at that moment some action was going on or at some point of time, किसी एक निश्चित टाइम पे. So that is the past continuous tense. Past perfect tense, the action happened before another past action or before some point of time in the past. तो वो काम जो पास्ट एक्शन जो प्रीवियस समय में जो पास्ट में जो काम हुआ है उस समय पे वो काम हुआ हो और उसके पहले या तो उसके पहले हुआ, बिफोर सम पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ एक्शन, टाइम इन द पास्ट, मतलब कोई एक निश्चित जो समय दिया हुआ पास्ट में वो काम कंप्लीट हुआ हो. सो दैट इज द पास्ट परफेक्ट टेंस. द नेक्स्ट फॉर्म वी हैव पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. The action lasted for some time before another past action or before some point of time in the past. Means वो action जो कुछ समय तक किसी past action के पहले कुछ समय तक वो action किया गया हो और before some point of time in the past. past में किसी एक निश्चित समय के पहले वो काम किया गया हो. So that is past perfect continuous, जो किया जा रहा हो. Understood? So we will discuss the example. Turn the page. Time expressions, जो expressions use होते हैं, time expressions. Yesterday, last week, last year, in 1995, in 2009, 2 hours ago, 4 years ago, etc. Means इस तरह से ये time expression simple past tense में use होते हैं. Example, I saw him an hour ago. He came back last Friday. She went to the theatre yesterday. They visited London in 2009. So here notice one thing, that all the verbs are in the second form. जो भी आपको verbs दी हुई हैं किस फॉर्म में है, second form, that is the simple past tense. Simple past tense में verb का second form use होता है. Understood? Then next we have past continuous. Past continuous में time expressions दी हुई हैं. While, when, at 5 o'clock yesterday, when he came in, I was reading a letter. मीन्स जब पास्ट में कोई एक्शन हुआ तो उसी समय वो एक्शन चल रहा था. व्हेन ही केम इन मतलब जब वो आया तब मैं क्या कर रहा था, लेटर रीड कर रहा था. सो दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. वी वर वॉचिंग टीवी एट 3 o'clock yesterday. हम कल क्या देख रहे थे, टीवी देख रहे थे, और यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है 3 o'clock. दैट इज फॉर yesterday. सो दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. देन past perfect tense, by the time, before, after, by 1998, by yesterday, by last Sunday. Example, by the time he returned means जिस समय वो लौटा. She had already left, वो already जा चुकी थी. मीन्स ये जो पास्ट में एक्शन हुआ है उसके पहले भी कोई एक्शन हो चुका, ऑलरेडी दैट एक्शन हैड बिन डन. शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट, वो ऑलरेडी जा चुकी थी. जब तक वो आया वो ऑलरेडी जा चुकी थी. इट मीन्स एक एक्शन ऑलरेडी हो चुका है पास्ट में. पास्ट में कोई एक्शन हो उसके पहले कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है. दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस. ही लेफ्ट ओनली आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क. दैट इज ऑल्सो द पास्ट परफेक्ट टेंस.
Then we have past perfect continuous time expressions. By the time, before, after, by yesterday, by 2005, for 2 hours, for a long time. So these time expressions includes in past perfect continuous tense. Example, by the time he returned, I had been working for 6 years. So means by the time he returned means जब वो लौटा, I had been working for 6 years. Sorry, 6 hours means 6 घंटे से मैं वर्क कर रहा था. So that is past perfect continuous. Understood? Means continuous, कोई काम चल रहा है, जब कोई काम हुआ है पास्ट में, उसके पहले कोई पॉइंट ऑफ टाइम आपको यहाँ पे दिया हुआ है 6 hours, तो उस समय वो काम चल रहा था पास्ट में. By 2006, that is, he had been living there for 20 years. By 2006, he had been living there for 20 years. 2006 से वो वहाँ पे रह रहा है. कितने समय से? 20 years. Understood? So students, go through the example carefully, read again and again. Now there are some more important tips are here. Let us read. Simple past is used for completed past actions. Yes, simple past tense जो completed past actions होते हैं उसके लिए यूज होता है, including past action that lasted for some time or happened one after another. Means जो कुछ समय तक रहे पास्ट में या एक के बाद एक वो वर्क कंप्लीट हुआ है. So that is simple past tense. He sold cars for 2 years and then he quit his job and began to write novels. So all these situations, in all these situations we will use simple past tense. Simple past is used instead of the past continuous with stative verbs. So simple past भी हम यूज़ करते हैं past continuous tense में जब stative verbs दी हों. She looked tired when I saw her at the party yesterday. Stative words मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि the words which state something, जिससे आपको कुछ पता चल रहा हो, जो स्टेट कर रही हूँ, कुछ बतला रही हूँ, that is stative words. She looked, so इसमें looked, that is the stative word कि वह टायर्ड दिख रही है जब मैंने उसको दिख रही थी जब मैंने उसको पार्टी में कल देखा. Past perfect may replace the past perfect continuous. Past perfect किसको रिप्लेस कर सकता है? Past perfect continuous को. For the action that lasted for some time, उस एक्शन के लिए जो कुछ देर तक रहा. Before another action in the past, जो एक्शन दूसरा एक्शन पास्ट में हुआ उससे पहले वो एक्शन कुछ देर तक रहा. For that type of actions we will use past perfect. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस. बाय द टाइम ही रिटर्न्ड आई हैड वर्कड फॉर 6 hours. यहाँ पे आई हैड वर्क भी यूज़ कर सकते थे, एज यू से हियर इन द एग्जाम्पल. बाय द टाइम ही रिटर्न्ड आई हैड बीन वर्किंग फॉर 6 hours. सो इन प्लेस ऑफ दैट वी कैन ऑल्सो यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस. Past perfect continuous. Past perfect is used instead of the past perfect continuous with stative verbs. Students इस बात का ध्यान रखेंगे जब stative verbs हों तो वहाँ पे हमको tenses को carefully यूज़ करना है. Understood? Continuous tense की जगह वहाँ पे एक उसके पहले वाला फॉर्म यूज़ होगा. जैसे कि पास्ट कंटिन्यूस है तो वहाँ पे हम सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो हम क्या यूज़ करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके. देन वी हैव एग्जांपल. शी हैड नोन हिम फॉर 5 years बाय द टाइम दे गॉट मैरिड. वो उसको 5 साल से जानती थी. बाय द टाइम दे गॉट मैरिड, जब वो मैरिज हुई उनकी उसके पहले वो 5 साल से एक दूसरे को जानते थे. So go through the rules carefully and study again and again in order to understand the tenses well. Then we have the exercises also. So try to solve these exercises. So let us start simple future tense. Simple future tense means वो समय जो वो वर्क
जो फ्यूचर में होने वाला है मीन्स आगे होने वाला है. द एक्शन विल हैपन इन द फ्यूचर. द एक्शन विच विल गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर. टाइम एक्सप्रेशन टुमारो मीन्स कल. ये कल की बात की जा रही है मीन्स आने वाला कल. इन अ फ्यू डेज, नेक्स्ट वीक, इन 2025, इन द फ्यूचर. इन 2025 जस्ट लाइक अभी 2020 चल रहा है एंड 2025 मीन्स आगे आने वाले साल के बारे में हम बात कर रहे हैं. दैट इज़ अबाउट द फ्यूचर. एग्जाम्पल, आई थिंक ही विल रिटर्न नेक्स्ट वीक. मुझे लगता है कि वो नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा. सो दैट इज़ अबाउट द फ्यूचर. हियर वी विल यूज विल with the first form of the verb. I will probably see him in a few days. We shall be home after 8. So here in all verbs we have to use first form of the verb only with the future tense with will or shall. The next future continuous tense, the action will be going on when another future action happens or at some point of time in the future. जो action हो रहा है फ्यूचर में, जब कोई दूसरा फ्यूचर एक्शन हो रहा है और एट सम पॉइंट ऑफ एक्शन इन द फ्यूचर. एट 3 टुमारो, एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, और व्हेन मीन्स एट 3 टुमारो कल 3 बजे मीन्स वहाँ पे एक टाइम दिया हुआ है फ्यूचर में, लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम किसी एक आपको निश्चित समय के बारे में बताया गया है फ्यूचर में. सो दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. ही विल बी स्लीपिंग एट 2 o'clock. व्हेन यू कम टू द लाइब्रेरी, आई शैल बी सिटिंग बाय द सेंट्रल विंडो. मीन्स जब तुम लाइब्रेरी में आओगे तो मैं कहाँ मिलूँगा? सेंट्रल विंडो के पास तुमको बैठा हुआ मिलूँगा. फ्यूचर परफेक्ट, द एक्शन विल हैपन बिफोर अनदर फ्यूचर एक्शन. एक्शन वो होगा जो अनदर फ्यूचर एक्शन के पहले जो एक्शन होगा, दैट इज़ फ्यूचर एक्शन, और बिफोर सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर. और किसी या तो कोई सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो. पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स आपको निश्चित समय बता दिया जाए. सो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ टाइम कि कब होगा. बाय द टाइम, बाय 2035, बाय टुमारो और बिफोर. तो ये आपको टाइम एक्सप्रेशंस दी हुई हैं. बाय द एग्जाम्पल, बाय द टाइम आई गेट देयर मीन्स जब मैं वहाँ पे जाऊँगा. शी विल हैव लेफ्ट, वो जा चुकी होगी. शी विल हैव लेफ्ट मीन्स ये फ्यूचर का बताया जा रहा है कि शायद जब तक कि मैं वहाँ पहुँचूँगा वो वहाँ से जा चुकी होगी. बाय 2050, दैट इज़ अनदर प्रेडिक्शंस कि 2050 तक फ्यूचर के बारे में बोला जा रहा है. साइंटिस्ट विल हैव फाउंड द क्योर फॉर कैंसर. साइंटिस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट मीन्स उसकी दवाई ढूंढ लेंगे. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, द एक्शन विल लास्ट फॉर सम टाइम बिफोर अनदर फ्यूचर एक्शन और बिफोर सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर. तो एक्शन किसी फ्यूचर में जब कोई काम हो रहा हो उसके पहले कोई काम कुछ समय तक वहाँ पे हो रहा हो, कंटिन्यू हो रहा हो, दैट इज़ द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. बाय द टाइम, बाय 2030, बिफोर, फॉर, टुवर्ड्स. तो ये आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए टाइम एक्सप्रेशंस के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो यूज़ होते हैं. एग्जाम्पल, बाय द टाइम ही रिटर्न्स आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 9 hours. तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है कि फर्स्ट हाउ मेनी आवर्स, 9 hours के लिए वहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँगा जब वो आएगा. बाय 2025 he will have been living there here for 50 years. 2025 तक वो वहाँ पे कितने समय तक के लिए रह रहा होगा? मीन्स इतना समय उसको हो जाएगा वहाँ पे रहते 50 years. Stative verbs are verbs that express a state rather than an action. As I had told you all earlier in the previous session also, that stative verbs which express or states something. It's not an action, it is the expression which states something. Okay, they usually relate to thoughts, emotions, relationships, senses, states of being and measurements. So here we have finished the tenses in the active
वॉइस। एक्टिव वॉइस में टेंसेस आपको बता चुकी हूँ मैं। सो गो थ्रू द वॉइस टेंसेस केयरफुली। एक्टिव मीन्स जो एक्शन में हो। इन द नेक्स्ट session we will discuss about the tenses in the passive voice.